ईमान के मुतालिक हमारा ये आखिरी मैसेज है। And today, about faith, this is the last message of the बेशक series. बहुत सारे टॉपिक हैं, बहुत ज्यादा लंबा दूर तक हम इसके ऊपर कलाम कर सकते हैं। No doubt, there are so many topics, and we can talk about faith for a long time. बट आज हम इसे आखिरी मैसेज करेंगे फेथ पर, But this will be the last message for faith. और यह है ईमान से लड़ना। And this means fighting by faith. आपकी जिंदगी के तमाम पहलू जो ईमान के हवाला से हैं, And wherever your life is about faith. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप ईमान के साथ जंग करें, And it's very important that you would fight by faith. क्योंकि हमारी जंग जो है खून और गोश्त से नहीं है, कलाम मुकद्दस में लिखा है। Because our fight is not with flesh and blood. हमें अपने दुश्मन को जानना है कि हमारा दुश्मन कौन है जिससे हमारी जंग है, We need to know our enemy, and we need to know who is our enemy. और हम जानेंगे कि हमारा दुश्मन कौन है जिससे हमें हमारी जंग है, And we will know who is our enemy and who we are supposed to fight. और हमें अपनी जिंदगी में इस टारगेट को फिक्स कर लेना है कि हमें अपने दुश्मन को तलाश करना है और उसके साथ जंग करनी है और जीतना है उससे। And this should be our target, to find the hidden enemy and overcome him. लेकिन इससे पहले हमें ये जानना है कि जंग करने के लिए हमें तैयारी क्या करनी है। But before that, we need to learn how do we prepare for the battle. जिस तरह बहुत सारे पहलवान हैं, जब हम कुश्ती के लिए जाते हैं तो बहुत सारी डिफरेंट एक्सरसाइजेस करते हैं, बहुत सारी खुराक खाते हैं डिफरेंट किस्म की। And just like wrestlers or athletics, when they fight, they are preparing for fight. They prepare themselves. They eat things that they need to eat to make their body stronger. लेकिन हम जो खुदा के लोग हैं, हमें जंग के लिए क्या करना चाहिए? But we as people of God, what can we do to fight the battle? अगर मेरे साथ आप निकालें, एक सेम हवाला यही है, पहला तिमुथियुस 6 बाब उसकी 11 आयत पढ़े। If you will open with me 1 Timothy chapter 11, it says, और लिखा है कि मगर आए मर्दे खुदा, तू इन बातों से भाग और रास्तबाजी, दयानतदारी, ईमान, मोहब्बत, सबर और हिलम का तालिब हो। and it says, 1 Timothy chapter 11 says, but you men of God, flee from all this and pursue righteousness, godliness, faith, love, endurance, and gentleness. अगर इस आयत में देखें तो वार्निंग दी गई है। If we see in this verse, there's a warning. इन चीजों से भाग, इन चीजों को छोड़ दे जो तुझे कमजोर करती हैं। Because this verse says, run from these things, do not hold on to them that makes you weak. उन चीजों को अपनी जिंदगी में ना आने दे जो तेरे लिए मुश्किलात पैदा करती हैं। And don't let them come in your life, those things that distract you, that create problems for you. इन चीजों को कभी अपनी ज़हन में, अपनी सोच में ना आने दे जो तेरे ईमान को कमजोर करती हैं। And don't let these things come into your mind, your thoughts that make your faith weaker. क्योंकि जब आपका ईमान कमजोर है तो आप अपनी जंग जीत नहीं सकते। Because when your faith is weak, you cannot win your battle. और इसके लिए आपको क्या करना है, ये 6 चीजें कलाम मुकद्दस में बताएंगे जो हमारी जिंदगी में इनका होना बड़ा जरूरी है। There are 6 things that Bible has taught us, that Bible has there's written in the Bible that are important to be in our lives. पहली बात क्या है? रास्तबाजी। The first thing is righteousness. दूसरी बात दयानतदारी। Then it's faithfulness. ईमान, It's faith, मोहब्बत, love, सबर, patience, और लिखा है कि हिलम का तालिब रहो। and be humble. ये 6 चीजें जो आपकी जिंदगी में होना बहुत जरूरी है अगर आप इस जंग को जीतना चाहते हैं। These 6 things should be in your life if you want to win your life, if you want to win your battle. क्योंकि रास्तबाजी, दयानतदारी, ईमान, मोहब्बत, सबर और हिलम ये आपको तकवीयत और ताकत देते हैं आपकी जंग को जीतने के लिए। Because righteousness, faith, humbleness, they give you strength to fight your battle. क्योंकि आपकी जंग किसी आम शख्स से नहीं है। Because your battle is not with any normal any human. आपका मुकाबला किसी इंसान से नहीं है। Your battle is not with a human. आपका मुकाबला किसी कमजोर दुश्मन से नहीं है। Your battle is not with someone who is weak. आपका दुश्मन बहुत मजबूत और स्ट्रांग है, Your enemy is very powerful, जो हर वक्त तैयार रहता है, who is always ready
to attack you. आपकी कमजोरियों को हमेशा वो देखता रहता है, परखता रहता है। And he keeps looking at your weaknesses. He keep observing you. जहां पर आप कमजोर होते हैं उसी वक्त वो आपके ऊपर अटैक करता है। Wherever you are weak, he catches you and attacks you. इसलिए अपने आप को हर वक्त तैयार रखें। That's why we need to be ready all the time. कुछ और चीजें हैं जो आपकी जिंदगी में आपके ईमान को कमजोर करती हैं, जिनको आपको अपनी जिंदगी से निकालने की जरूरत है। There are some other things that makes your faith weaker, and we need to get them out of our lives. जिसके लिए खुदा उनका बंदा तिमोथेयुस कह रहा है कि इन चीजों से भाग। वो कौन सी चीजें हैं? And for that, Timothy is saying that run from these things. अगर मेरे साथ इसी चैप्टर में 6 बाब और उसकी 7 से 10 आयत पढ़ें। If you will read with me chapter 6 verse 10. 7 to 10 7 to 10. और लिखा है कि क्योंकि ना हम दुनिया में कुछ लाए और ना कुछ इसमें ले जा सकते हैं, बस अगर हमारे पास खाने पीने को है तो उसी पर कनाहत कर। लेकिन जो दौलतमंद होना चाहते हैं वो ऐसी आजमाइश और फंदे और बहुत सारी बेहुदा नुकसान पहुंचाने वाली ख्वाहिशों में फंसते हैं जो आदमियों को तबाही और हलाकत के दरिया में गर्क कर देती हैं। क्योंकि जर की दोस्ती हर किस्म की बुराई की जड़ है, जिसकी आरजू में बाज ने ईमान से गुमराह होकर अपने दिलों को तरह तरह के गमों से छलनी कर लिया। For we brought nothing into the world, and we can take nothing out of it. But if we have food and clothing, we will be content with that. Those who want to get rich fall into temptation and trap, and into many foolish and harmful desires, and plunge people into ruin and destruction. For the love of money is a root of all kind of evil. Some people eager for money have wandered from faith and pierced themselves with many griefs. आमीन। जिसमें सबसे बड़ी बात, जो सबसे खास बात उन्होंने बताई है कि हर किस्म की बुराई की जड़ है, जिसकी आरजू में बाज ने ईमान से गुमराह होकर अपने दिलों को तरह तरह के गमों में छलनी कर ली। वो कौन सी चीज है? जर की दोस्ती। For if we repeat verse 10, it says, for the love of money is a root of all kinds of evil. Some people eager for money have wandered from faith and pierced themselves with many griefs. कलाम में लिखा है कि आसमान की बादशाही में दाखिल होने के लिए बड़ी खूबसूरत आयत है कि ऊंट का सुई के नाके में से गुजर जाना आसान है, जबकि दौलतमंद का खुदा की बादशाही में जाना बहुत मुश्किल है। The word of God says that it's easier for a camel to pass through the head of needle, but a wealthy person cannot enter into the kingdom of God. But मैं इसे जरा दूसरे अंदाज में एक्सप्लेन करता हूँ। But I explain it in a different way. I will give you a new perspective about it. अगर बाइबल देखें तो खुदा के लोग जो थे, बड़े बड़े खुदा के खादिम जो थे, खुदा के नबी जो थे, खुदा के साथ वफादार चलने वाले, कोई भी उनमें से गरीब नहीं था। But if we see the Bible, if we see the stories, all the prophets and all the men of God, they were not poor. अगर आप शुरू से देख लें, बाप इब्राहिम को देख लें, If we see Abraham, अमीर तरीन आदमी था। he was the richest man ever. अयूब को देख लें, जैसे हमने पहले इसके ऊपर कलाम किया। And last week we talked about Job, and if we see Job, he was so wealthy. अहले मशरिक में सबसे अमीर आदमी था। He was so wealthy that he was the richest man in East. खुदा के बंदा सुलेमान को देख लें, अमीर तरीन। If we see Samuel, if we see Solomon, he was the richest man ever. दाऊद को देख लें। If we see David, आप वन बाय वन बहुत सारे लोगों की लिस्ट में आपको गिनवा सकता हूं। and we can keep on counting. लेकिन अगर आप इस दौलत आपके लिए बुरी नहीं है, Wealth is not bad. ये आपकी गलत नहीं है अगर आप इसका इस्तेमाल गलत ना करें तो। It's not bad if you don't use it properly. पैसा हमारे लिए बहुत जरूरी है। हर शख्स दौलतमंद होना चाहता है। Money is important. Everybody wants to be wealthy. लेकिन अगर आप इस पैसे को खुदा की खिदमत के लिए, खुदा के लोगों के लिए इस्तेमाल करें, खुदा के काम के लिए इस्तेमाल करें, तो आपके लिए बाइस बरकत है। But if the same wealth, if the same money, you use it for God, for His kingdom, for His people, the same money is blissful for you. लेकिन अगर आप इसको दुनियादारी के कामों के लिए, अपनी ऐश-ओ-इशरत के लिए, अपने लिए इस्तेमाल करते हैं किसी गलत वे में,
तो वो आपके लिए गुनाह है. But if the same money you use for the world, you use it for your own benefits, you are self-centered, you are wealth-centered, then it's harmful for you. क्योंकि जो आयत 9 है उसमें लिखा है, लेकिन जो दौलतमंद होना चाहते हैं वो ऐसी आजमाइश और फंदे और बहुत से बेहुदा और नुकसान पहुंचाने वाली ख्वाहिशों में फंसते हैं जो आदमियों को तबाही और हलाकत के दरिया में गर्क कर देती है. And if we see verse 9, it says, those who want to get rich fall into temptation and trap into many foolish and harmful desires that plunge people into ruin and destruction. लेकिन ये उन लोगों के लिए जो इस पैसे का गलत इस्तेमाल करते हैं. ज़र की दोस्ती है आपको बहुत सारी गलत चीजों में, बहुत सारे कामों में ले जाती है. It's for those people who love money and money is everything for them and they want to be rich for their own benefits. इन तमाम बेहुदा बातों को, इन तमाम चीजों को अपनी जिंदगी से दूर करें जिससे आपका ईमान कमजोर होता है, जिससे आप अपनी जंग में कमजोर हो जाते हैं. And we need to get rid of these harmful desires so that we would not be destroyed. और अगर हम खुदा के कलाम को थोड़ा आगे जाके देखें, And if we see further, ये तमाम चीजें करने के बाद अपने अंदर से उन बुराइयों को निकाला, अपने अंदर वो तमाम अच्छी चीजों को ले लिया जो कलाम मुकद्दस हमें कहता है. and after taking all these desires out of you, after giving yourself completely to the Lord, after surrendering, और फिर उसके बाद आपको रूहानी हथियारों की जरूरत है. रूहानी तौर पर जिन हथियारों से लड़ सकते हैं उनकी जरूरत है. and after that we need those spiritual weapons. We need to fill ourselves with God, and then we need spiritual weapons to fight the battle. क्योंकि आपको अब्लीस के साथ, बुराइयों के साथ लड़ने के लिए बंदूकों और गनों और चाकुओं और तरह तरह के दुनियावी हथियारों की जरूरत नहीं है. Because you will not need the weapons, the guns, and all those worldly weapons to fight enemy. मेरे साथ इफिसियों 6 बाब की 13 तक आप निकालें. If you will open with me Ephesians chapter 6 verse 13. इफिसियों 6 बाब और उसकी 11 आयत में हमें इन हथियारों का जिक्र मिलता है. Ephesians chapter 6 verse 11. 11 बाब की 13 आयत, इफिसियों 6 बाब की 13 आयत. Ephesians chapter 6 verse 13. इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको और सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको. बस सच्चाई से अपनी कमर कसकर और रास्तबाजी का बख्तर लगाकर और पांव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ ईमान की सिप पर लगाकर कायम रहो, जिससे तुम उस शरीर के सब जलते हुए तीरों को बुझा सकोगे और नजात का खौद और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है ले लो. आमीन. So if we'll read Ephesians chapter 6, it says, therefore put on the full armor of God, so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground. And after you have done everything to stand, stand firm then, with the belt of truth buckled around your waist, with the breastplate of righteousness in the place. So खुदावंद का कलाम ये सिखाता है कि इन हथियारों की आपको जरूरत है इब्लीस के साथ जंग करने के लिए. And if we read further, it says, and with your feet fitted with the readiness that comes from the gospel of peace. In addition to all this, take up your shield of faith, with which you can extinguishing all the flaming arrow of the evil one. And these are the weapons we need to fight the battle. आमीन. Amen. जिसमें पहला हथियार है सच्चाई का कमरकस. And if we see, the first weapon is the breastplate of righteousness. रास्तबाजी का बख्तर, I'm sorry. खुशखबरी की तैयारी के जूते, ईमान की सिपर और रूह की तलवार. So if we see, it says the girdle of truth, the breastplate of righteousness, the shield of faith, and the sword of the Spirit. So इन हथियारों के साथ आप इब्लीस के साथ जंग कर सकते हैं. With these weapons, we can fight the battle. क्योंकि सच्चाई हमेशा आपको आजाद करती है. Because truth always gives us freedom. और रास्तबाजी आपके चारों तरफ आपको घेरे रहती है. And righteousness keeps us surrounded. और जब खुशखबरी के जूते पहनते दूसरे लोगों को खुशखबरी देने के लिए आप जाते हैं तो आपके लिए वो बाइस से बरकत है. And when you go ahead and you share the word of God with others by wearing the shoes of good news.
और अगर आप ईमान की सिप पर लेते हैं तो वो आपको हमेशा हर तरह के खतरे से, हर तरह की मुश्किल से और हर तरह के जलते हुए तीरों से वो महफूज करती है। And if you take the shield of faith, it protects you from all the problems and errors of enemy. और रूह की तलवार जो है आप दुश्मन पर वार करके उसको हलाक कर सकते हैं, उसको नेस्त कर सकते हैं। And if you take the sword of the Spirit, you can fight the enemy. मेरे अजीजों, My brothers and sisters, आज वक्त है कि आप इन हथियारों को लेकर, आज जबकि अब आखिरी वक्त है, कलाम में लिखा है आखिरी जमाना चल रहा है, आखिरी वक्त चल रहा है, और इस वक्त में आपको खुदावंद के साथ वाबस्ता होने की, खुदा के साथ पैवस्त होने की, खुदा के इन तमाम हथियारों को लेकर चलने की जरूरत है ताकि आप अबलीस के साथ जंग कर सकें। so as we know the last days are going and we need these weapons to fight the enemy, to keep on standing, keep standing on the faith. और आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा दुश्मन है कौन एग्जैक्टली, And we need to know who is the enemy. क्योंकि आप अंधेरे में तीर नहीं चला We सकते। cannot attack in the darkness, क्योंकि आप खुदा के लोग हैं। because we are the people of God and we need to know who is our enemy. इफिसियों 6 बाब और उसकी 10 और 12 आयत अगर पढ़ें, If you will open with me Ephesians chapter 6 verse 10 to 12. लिखे कि गर्ज खुदावंद में उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो, खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि तुम अबलीस के मंसूबों के मुकाबले में कायम रह सको, क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना बल्कि हुकूमत वालों, इख्तियार वालों और इस दुनिया की तारीकी के हाकमों और शरारत की उन रूहानी फौजों के साथ जो आसमानी मकामों में कायम हैं। Finally, be strong in the Lord and in his mighty power. Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's scheme. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authority, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. आमेन। Amen. आपको पता होना चाहिए कि आपका टारगेट क्या है, We need to know what is our target. आपका दुश्मन कौन सा है जो आपके सामने जिस पर आपने अटैक करना है। Who is our enemy that we are going to attack? तारीकी की नापाक कुफ्तें जो आसमानी मकामों में कायम है, जो आपकी दुआ रोक लेती हैं, आपकी दुआओं को ऊपर पहुंचने से रोक देती हैं ताकि आपकी इल्तिजाएं मना जाते हैं खुदा के हुजूर जल्दी ना पहुंचे। It says against the authority, against the power of the dark world, against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. आमीन। Amen. क्योंकि आपको जरूरत इस बात की खुदा के कलाम को पढ़ें और खुदावंद के साथ पूरी तरह आप उसके साथ वाबस्ता हो जाएं, खुदावंद के साथ वफादारी से चलें ताकि आपकी दुआएं, आपकी इल्तिजाएं, आपकी मना जातें कोई अबलीसी कुव्वत रोक ना सके। We need to walk with the Lord. We need to be faithful with the Lord so that no evil, no power of evil can shake us. हमें करना क्या चाहिए? What do we need to do? मेरे साथ एक हवाला जरा निकालें। If you will open with me क्रंथियों, पहला क्रंथियों 1 Corinthians उसका 16 बाब, chapter 16. पहला क्रंथियों उसका 16 बाब अगर आप मेरे साथ निकालते हैं तो कलाम मुकद्दस में लिखा है, उसकी 13 आयत में लिखा है, करना क्या चाहिए हमें इसके लिए? जागते रहो, ईमान में कायम रहो। जागते रहो और ईमान में कायम रहो। It says, be on your guard, stand firm in the faith, be courageous, be strong. अगर आप चाहते हैं कि अपनी जंग जीत लें, If you want to win your battle, आपको जागते रहना है, you need to stay खुदा के awake. साथ अपने लिंक को बरकरार रखना है, You need to keep the link with the Lord. खुदा के साथ आपका राबता बना रहे दिन और रात। Let your relationship with the Lord be strong. कलाम में लिखा है जागते रहो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। Bible says, be on God, stand firm in faith, be courageous, be strong, so that you won't fall into temptation. अगर आप रूहानी तौर पर जागते हैं तो कभी भी इब्लीस आप पर फतहमंद नहीं हो सकता। Because if you are awake spiritually, enemy cannot overcome you. ज़बूर 125 उसकी पहली 3 आयत में लिखा है जो खुदाउन पर तवक्कल करता है वही कामयाब और कामरान होता है। मेरे साथ अगर आप निकालें इसको तो इसको पढ़ लें, बड़ी खूबसूरत आयत है। What? ज़बूर 125 Psalm 125. जी उसकी पहली 3 आयत हैं, जो खुदाउन पर तवक्कल करते हैं वो कोहे सैऊन की मानद हैं, जो अटल बल्कि हमेशा कायम है। जैसे यरूशलेम पहाड़ों से गिरा है वैसे अब से अब तक खुदावंद अपने लोगों को
घेरे रहेगा। प्रेज लॉर्ड, आमेन। Those who trust in the Lord are like Mount Zion, which cannot be shaken but endures forever. As the mountains surround Jerusalem, so the Lord surrounds his people, both now and forevermore. आमेन। Amen. खुदावंद पर तवक्कल करने से क्या है कि खुदा आपकी निगाहबानी और हिफाजत करता है। लिखा है कि जैसे यरूशलेम पहाड़ों से गिरा है, वैसे ही अब तक खुदावंद अपने लोगों को घेरे रहेगा। Our faith, our trust in the Lord keeps us going in life, and Bible says that those who trust in the Lord are surrounded just like Jerusalem is surrounded with mountains. आमेन। Amen. और अगर आप ज़बूर 35 उसकी पहली 3 आयत पढ़े तो लिखा है क्या है, खुदावंद जो मुझसे लड़ते तू उनसे लड़, जो मुझसे झगड़ते तू उनसे झगड़, ढाल और सिपर लेकर मेरी कुमक के लिए खड़ा हो, भाला भी निकाल और मेरा पीछा करने वालों का रास्ता बंद कर दे। And if we read Psalm 35 verse 1 to 3, it says, "Contend, Lord, with those who contend with me. Fight against those who fight against me. Take up the shield and armor. Arise and come to my aid. Brandish spear and javelin against those who pursue me. Say to me, I am your salvation." आमीन। Amen. खुदावंद का वादा है आपके लिए। This is God's promise with us. खुदावंद आपकी हिफाजत करेगा। God protects us. खुदावंद आपको हर तरह की मुश्किलात और परेशानियों से महफूज रखेगा, That He will protect us from all the tribulations and temptations of enemy. क्योंकि वो हमारा बाप है। Because He is our Father. उसने हमें अब अब्बा और बाप कहने का हक He बख्शा है, has given us the right to call Him Father. और वो आपको ताकत और तकवीत देगा कि आप अपने दुश्मन पर गालिब आए। And He will give us strength and power to overcome the enemy. अरे अजीजों, My brothers and आज sisters, का कलाम जो है today's message हमें तकवीत देता है कि हमें जंग लड़नी है इब्लीस के खिलाफ। and today's message gives us strength to fight our battle with the enemy. लिखा है ईमान की कुश्ती, ईमान की कुश्ती से लड़ना है हमें। हमें अपनी ताकत और अपनी अक्ल और अपनी दनाई से नहीं, बल्कि ईमान के साथ। It says the fight of faith, the good fight of faith, not with our own understanding, not with with what we see, but with faith. ईमान की कुश्ती लड़नी है। It's अजीजों, the fight of faith. आज वक्त है कि हम अपने आप को खुदावंद के सामने रखें It's time that we put ourselves in front of और God खुदावंद से ताकत और कुव्वत मांगें। and we ask for strength from the Lord. अगर हमारे ईमान में कमी है, That if we have weaknesses in our faith, अगर हमारा ईमान अभी तक कमजोर है, if our faith is weak, अगर हम अभी तक खुदा से दूर हैं, if we are still far from the Lord, जरूरत है कि खुदा के पास आ जाएं। it's time that we come close to the Lord. जरूरत है कि खुदावंद की मर्जी को जानने की कोशिश करें। It's time that we know who is Jesus and we know Him personally. आपकी जिंदगी में हजारों किस्म की लड़ाइयां हैं। There are thousands of battles that we fight every day in our lives. बेरोजगारी की लड़ाई है, There is joblessness. घर के मसाइल और बीमारियों और मुश्किलात की लड़ाई है, There are problems in our houses. और in तरह तरह families. की मुखालफत और तरह तरह की इब्लीस की आजमाइशें जो आपके चारों तरफ एक जाल बुना हुआ है, उसकी लड़ाई है आपकी। There are so many temptations and lies from the enemy क्योंकि आपका दुश्मन जो वो सोता नहीं है, because our enemy does not sleep. और हमारा खुदावंद है वो भी सोता नहीं है। ज़बूर नवीस कहता है ना सोता है, ना ऊँघता है, ना उंगलाता है। And our God does not sleep either. Bible says that He doesn't sleep, He doesn't slumber. अगर आप अपने खुदा के साथ वफादार हैं, If you are faithful with your God, तो वो आपकी हिफाजत करने के लिए तैयार है, and so He is ready to protect you. वो आपके लिए लड़ने के लिए तैयार है। He's ready to fight for you. कलाम में लिखा है कि जंग तो खुदावंद की है, Bible says the battle belongs to the Lord. आपको ईमान के साथ खड़े होने की जरूरत है। You just need to stand by faith. जब आप ईमान के साथ खड़े हो जाएंगे तो जंग 100% आप जीतेंगे। When you stand by faith, the victory is yours because it's not you who is fighting but क्योंकि God. खुदावंदों का खुदा, बादशाहों का बादशाह आपके साथ है। Because God of God and King of Kings is standing with you, behind you and covering you. प्रेज लॉर्ड, आमीन। Amen. सो आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और सरों को झुकाएं और दुआ करें। Let's close our eyes and pray. खुदाए जुलजलाल, खुदाए कद्दूस, Heavenly Father, Lord, we come. खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ आज के खूबसूरत कलाम के लिए, Lord, I thank you for today's message
क्योंकि खुदावंद का कलाम जहां भी किया जाता है वो बेतसीर नहीं लौटता। Because wherever you share the word of God, it never turns back without an effect. जितने लोग खुदावंद हमारे साथ हैं इस वक्त, Lord, whoever is watching us right now, उनके लिए बरकत चाहते हैं। Lord, we pray that you bless them. उनके ईमान की कमी और कमजोरी को खुदावंद तू दूर कर। And Lord, we pray that you remove all the weaknesses from their faith. उनको जंग करना सिखा, Lord, teach them to fight the battle. क्योंकि खुदावंद ये जंग तेरी है Because Lord, the battle belongs to you. और तेरे लोग तेरे नाम से खड़े हो जाते हैं And your people stand by your faith. और ईमान के साथ लड़ते हैं And when they fight by faith, और वो जीतते हैं तेरे नाम से। they always win. आमीन। Amen. खुदावंद तेरा शुक्र करता हूँ। Lord, we thank you. खुदा मैं तेरे लोगों को तेरे पाक हाथों में देता Lord, हूँ। we give our people in your hands. आज इनके घरों से Lord, today in their houses, तमाम बीमारियां, from their houses, all the sicknesses, all the diseases, तमाम मुश्किलात और परेशानियां all the temptation, tribulations, and work of devil, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हुक्म देते हैं कि जाती रहें। in Jesus' name we command it to go. तमाम तरह की खुदावंद बेरोजगारी, Lord, all the joblessness, Lord. तमाम तरह की कोरोना की वबा जो चारों तरफ से फैली हुई है, And Lord, this coronavirus, wherever it is, like it is surrounding us right now, Lord. खुदावंद तेरे यीशु मसीह के नाम से हुक्म देते हैं But Lord, we command it in your Jesus' name right now इन बदनों से दूर हो, to leave these bodies. क्योंकि यीशु ने खून खरीदे हैं। Because we are bought by your precious blood. खुदावंद यीशु के से ये खरीदे हुए लोग हैं। We are bought by your precious blood. इस पर बीमारियों का नहीं बल्कि खुदावंद यीशु का हक है। Lord, enemy does not own us. It does not have any authority over us, but it's your bodies. These are your temple. You have authority over them only. यस आमीन। खुदावंद तो अपने लोगों को छू और ब्लेस कर। Lord, I pray right now that touch your people, Lord. इन मुश्किलात और परेशानी को जो उनके चौगिर्द मंडलाती हैं, Lord, these problems and these temptations that surrounds them sometimes. यीशु के नाम से हुक्म देते हैं कि सर से पांव तक खुदावंद तमाम बीमारियां और कमियां कमजोरियां अभी इसी वक्त जाती रहे। Lord, in the name of Jesus, we command all the sicknesses, all the problems to leave right now. खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं। Lord, we thank you. We are grateful, तूने Father, छुआ है खुदावंद, that you have touched, तूने ब्लेस किया है। that you have blessed. खुदावंद तेरे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, In Jesus' name we pray. आमीन। Amen. खुदावंद की सिखाई दुआ में शरीक हों। Let's pray. आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम दूसरों के कर्ज मुआफ करते हैं, तू हमारे कर्ज बख्श। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्यों जो बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा ही हो, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सब के साथ और दुनिया भर के कुल मुकद्दसीन के साथ अब से हमेशा तक हो, आमीन। खुदा बाप, बेटा और रूह कुद्दुस के नाम से, आमीन। एक जरूरी ऐलान, नेक्स्ट टाइम हम दोबारा जब आपके साथ लाइव होंगे तो हीलिंग पर खुदावंद ने जो कलाम दिया है वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। Next time when we'll come live, we will share about healing of God. क्योंकि खुदा रूहानी और जिस्मानी तौर पर आपको बरकत देना चाहता है, आपको शिफा देना चाहता है। Because God wants to bless us spiritually and physically and heal us. और कल का दिन जो है, And tomorrow, कल फिर सेम टाइम हम ऐसे लाइव जाकर आप सब के लिए दुआ करेंगे। and tomorrow at the same time we'll go live and we'll pray for you all. पिछले दिनों में जितने जितने लोगों के साथ खुदा ने मौजज़ात किए हैं, उनकी अपनी जिंदगी की गवाहियां हैं, वो आप यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। And whatever God has done in your life in past in this series, let us know. अपनी मुश्किलात और परेशानियों को आप भेज सकते हैं, हम उनके लिए दुआ करेंगे। We will pray for all of you. You can send us all of your prayer requests and we will be praying for you tomorrow at the same time. खुदावंद आपको रिहाई बख्शेगा। God will give us जितनी deliverance. दरख्वास्तें आएंगी, हम नाम बनाम उनका नाम लेकर उनके लिए दुआ करेंगे। Whatever the prayer requests will be, we'll take their names and we'll pray for them. जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो उस वक्त हमारे साथ दुआ में होंगे Whoever is connected with us will be in prayer with us at that time. और पूरी दुनिया में आपके लिए, आपकी मुश्किल, आपकी परेशानी के लिए दुआ की जाएगी। And everyone who is connected with us throughout the world, we all will be praying for your prayer requests and for your problems. आमीन। Amen.
हफ्ते को दोबारा फिर हम खुदा उनका कलाम सुनेंगे And on Saturday, we will listen to the Word of God again. और नेक्स्ट ट्यूसडे And next Tuesday, 3 अगस्त को 3 August, हमारे साथ मेरे एक दोस्त खुदा उनके खादम पास्टर वॉकर जो कि बहुत बड़े चर्च के खादिम हैं और खुदा उनकी खिदमत को यहाँ अमेरिका में सर अंजाम दे रहे हैं on 3 August, Pastor Walker, he is pastoring right now a very huge and great church. He'll be preaching with us. वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद होंगे और आपके साथ खुदा उनका कलाम शेयर करेंगे He'll be present here with us and he will share the word of God with you all. खुदा आप सबको बरकत दे God bless you all. आपको टाइम बाय टाइम अनाउंसमेंट आपको मिलती रहेगी ताकि आपको And पता we'll रहे keep on announcing, we'll keep on updating you ताकि आपको सही टाइम का अंदाजा हो so that you would know what to do, what is coming next. लास्ट में मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ In the end, I want to thank you all. बहुत सारे खुदा के खादमुद्दीन जो पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं Many men of God who is in Pakistan right now, जो मेरे साथ राब्ते में हैं who is in who is talking with me right now. इन वीडियोस पे आपके बड़े खूबसूरत कमेंट्स होते हैं You all are being blessed by these videos and you are telling us that आप लाइक करते हैं you like it क्योंकि खुदावंद का कलाम जो है because the word of God हम सब के लिए बाइस बरकत है is blissful for all of us. मेरी आप सब के लिए आपके ख़ानदानों के लिए दुआ है It's my prayer for all of you and for your families. खुदावंद आपको बरकत दे God bless you all और खुदावंद आपको हर बीमारी से महफूज and रखे God would protect you from all the sicknesses. थैंक यू सो मच Thank you so much. गॉड ब्लेस यू God bless you.